You're watching Reality Check. We're coming to you live from Banaras in eastern Uttar Pradesh. Now, one of the big battles in this election has been the BJP's targeting of the Samajwadi Party, saying that during their time, it was Gunda Raj in Uttar Pradesh, which has now been cleaned up by the BJP. UP, the BJP now says, is safe for women. There is no crime, there is no Gunda, there is no mafia. वो जो आप पर भय बनाकर बैठे थे, वो जिनके डर से आप घरों से निकलने से बचते थे, वो सब आज काबू में है। समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का मतलब आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब पेशेवर माफिया और अपराधी को संरक्षण देने जैसा है। Right. Now, to be clear, during the Samajwadi Party time, there was a perception of Gunda Raj, and now, since the Yogi government has come to power, a number of criminals have been either arrested, alleged criminals have been either arrested or even killed in encounters which are seen as controversial. But beyond that, what is the reality? How bad was it during Samajwadi Party rule, and has Uttar Pradesh really transformed as a crime-free state? Let's look at the hard numbers, government data, and what does it tell you? Claim number one, Yogi government reduced crime is the claim. Reality, average all categories crime is up 35% during the Yogi government years. Average violent crime is actually up 2% during the Yogi government years. If you look at the actual numbers, from 2014 onwards, Samajwadi Party rule, all crime about 4 lakh annual incidents going up to 5 lakhs. And then even after Yogi comes in, it remains high at 6 lakhs. Again, 6 lakhs going all the way up to 6.6 lakhs in 2020. Violent crime, again, if you look at the numbers, between 50,000 to about 65,000 annual incidents during Samajwadi Party rule. That actually increases to 65,000 after Yogi comes to power and still remains in the same range. Claim number two, Yogi government has made Uttar Pradesh safe for women. This is another claim. What's the reality? Once again, crimes against women has shot up during the Yogi years, up 36%. 36%. Look at the annual incidents. During the Samajwadi Party rule, annual incidents of crime against women hovering around 39,000, going up to 50,000, 56,000 in 2017, almost hitting 60,000 in the years after that, after Yogi came to power. So crime against women, government data shows, has not gone down, it has actually shot up. Claim number three, no riots. This is a claim that the Yogi government has made and the Chief Minister has made again and again. There were no riots, he says, after I came to power. Reality, 30,000 riots since 2017, since the Yogi government came to power. The average yearly riots under the BJP is actually 9% higher than during the Samajwadi Party rule. And if you look at it again from annual incidents of riots in UP, crime data, NCRB data, 2013 to 2016 during the Akhilesh years, anywhere between 6,000 to 8,000 incidents of crime, goes up after Yogi comes back to 9,000, hovers at around 9,000, comes down again to about 6,000, but net it is actually been percentage-wise higher. Now, those are the numbers. On the ground too, there appears to be a mismatch between the BJP's claims and the reality. Even as the BJP targets the Samajwadi Party for taking candidates with criminal records and fighting them and fielding them in this election, even the BJP's own candidate list is not free from the mafia shadow, as we report from eastern Uttar Pradesh. Ghazipur, Eastern UP. On the campaign trail with Manu Ansari, Samajwadi Party candidate from the Mohammadabad seat. Nephew of the dreaded mafia don and former MLA Mukhtar Ansari, whose writ runs large in this region. Despite being in jail for over 16 years, facing multiple cases of murder, Ansari has been 5-time MLA from the nearby Mau seat.
Mukhtar Ansari is not contesting the state assembly elections for the first time in 22 years. Instead, his nephew and his son are contesting as part of the Samajwadi Party Gathbandhan, a link that the BJP keeps bringing up. उनके जेम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार. So we are here in Ghazipur in Mohammedabad seat with Mannu Ansari. He's the candidate here from the Samajwadi Party. He's the nephew of Mukhtar Ansari. Thank you very much indeed for talking to us. Now, Mannu Ansari, you're now fighting the election. But as you must have seen, the BJP has said the fact that you're there in the election indicates that your uncle's continued influence, mafia influence is there. This is signs that the Samajwadi Party is still backing candidates who have criminal mafia links. No, first of all, most welcome here. Thank you so much. It's not like that. Our party, my national president had decided that who is going to contest. That's why he selected me. And I am in election. And on 7th of March, poll date is there. And on 10th of March, result will come. But what about the serious charges against your uncle? I mean, he still continues to have a influence here and he has all the charges against him. No, it's not at all true. Everything is not true. What they are saying, people will decide. On 10th of March, people will decide who is influential here. No, but when you say not true, the charges, and there are several. Mukhtar Ansari has multiple cases, over 50 cases against him, including murder, attempt to murder, extortion, kidnapping, gangster act, multiple very serious charges. Main thing here is corruption, law and order. For youth, nothing, jobs, and what about this? Everything is happening in. People are struggling here. People are not able to eat. They cannot eat anything. This area, this all a rural area. लेकिन ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी को टिकट इसलिए नहीं दिया क्योंकि उससे एक छवि खराब हो जाती है कि आपने एक क्रिमिनल को दे दिया, लेकिन उसके बदले उनके बेटे और भतीजे को दे रहे हैं. वो आपको सही लगता है? वो स्ट्रेटजी जो भी हो सकती है हमारे बड़े ऊपर शीर्ष नेतृत्व कर हमारे जो भी लोगों ने फैसला लिया है उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ. सबसे बड़ी चीज़ महंगाई है, सबसे बड़ी चीज़ बेरोजगारी है, सबसे बड़ी चीज़ जो जुल्म अत्याचार हो रहा है, सबसे बड़ी चीज़ भ्रष्टाचार है. उस पर हमको बात आप इस पे कर रहे हैं. तो ये आपके सब समर्थक हैं यहाँ, ये सपा के समर्थक हैं, ये अंसारी परिवार के समर्थक हैं, कौन? हम सब लोग समाजवादी परिवार का हिस्सा. सब समाजवादी परिवार. तो ये आप सब समर्थक हैं. तो ये जो आरोप लगता है कि ये यहाँ माफिया राज चल रहा है, यही उसी वजह से उसी दबाव में यहाँ सब चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे कि अंसारी परिवार गलत बात है? लेकिन आरोप तो हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ, बड़े बड़े आरोप हैं, जेल में है इतने सालों से. झूठा है सर, दरअसल ये है कि ये अभी तय तो हुआ नहीं, वो तो आरोपी है ना. और अद्भुत प्रदेश है साहब, जहाँ का चीफ मिनिस्टर अपने ऊपर का केस स्वयं वापस ले लेता है. इसके काउंटर में क्या कहेंगे हम सब? हम तो अब तो ये तो इस देश के संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने आस्था रख करके कम से कम इस देश की न्यायालय संविधान में आस्था रखते हुए स्वयं को आरोपी अब तक मान रहे हैं. यहाँ के मुख्यमंत्री तो तमाम क्रिमिनल चार्जेज को अपने ऊपर से अपना मुकदमा स्वयं उठा लेते हैं. ये तो संविधान के साथ खिलवाड़ है. The BJP may have used the Ansari link here in Ghazipur to point to how the SP is promoting Mafia Raj. But the BJP has done something very similar in Chandoli, also in this eastern Purvanchal region. This is Sushil Singh, BJP candidate from the Syed Raja seat in Chandoli district, nephew of dreaded Don Brijesh Singh, said to be a rival of Mukhtar Ansari's gang. Brijesh Singh, jailed since 2008 on charges including murder, was elected as an MLC in 2016, reportedly with the BJP support. Sushil Singh does not deny his uncle's criminal actions. He says he was acting out of self-defense. मैडम देखिए, आप लोगों को असलियत की जानकारी नहीं है. इस प्रदेश में अधिकांश सपा बसपा की सरकारें रही हैं और वह लोग काफ़ी हमेशा सरकारों में हावी रहे हों, चाहे मुख्तार अंसारी रहे हों, चाहे और भी लोग रहे हों, हमेशा हावी रहे हों. हमारी परिवार की स्थिति ये थी कि हमारी दुश्मनी थी. दुश्मनी में चाचा के साथ किस तरह के लोगों ने क्या किया, चाचा फरार रहे, नहीं मार दिए गए होते. और उनके ऊपर जो केसेस हैं, उन केसों को आप सही तरीके से अगर आकलन करेंगी
तो आपको एहसास होगा कि इनके ऊपर न कोई अपहरण का केस है, न किसी कोई वसूली का केस है, एक्सटॉर्शन का केस है, आईपीसी 384 का चार्ज है उन पे। केस की जांच करिए, उस केस को देखिए कि उसमें सत्यता क्या है। केस तो किसी के ऊपर कुछ भी लिखाया जा सकता है, लेकिन वो अभी भी वो जेल में है। जेल में है, किस केस में है, कैसे केस में है, ये भी आपको देखने की जरूरत है। हम असलियत पे नहीं जाते हैं, हम केस को देख करके उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन ये जानने की जरूरत है कि उनके पिता के साथ क्या हुआ, मेरे बाबा के साथ क्या हुआ, हमारे परिवार के साथ किस तरह से अत्याचार किया गया। अगर हम खड़े होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं तो अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग समझते हैं कि माफिया है, बदमाश है, तो इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। उन्होंने कभी किसी कमजोर व्यक्ति को दबाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने किसी गरीब आदमी को परेशान करने की कोशिश नहीं किया। जो दुश्मनी जिन लोगों से थी उन लोगों से लड़ने का काम उन्होंने किया, यही उनके ऊपर आरोप। लेकिन ये तो सारे अपराधी अगर हम उनसे पूछेंगे वो वही कहेंगे कि हमने हमारे खिलाफ जो खड़े थे हमने उनके खिलाफ ही किया है। मुख्तार अंसारी का इस तरह का बैकग्राउंड हो देख लीजिए, वो तो कहते हैं कि उनके बाबा कौन थे। Sushil Singh's grandfather was reportedly killed over a land dispute in 1984. Sushil himself faces murder charges. आपके ऊपर भी केसेस है, आपके 2017 वाले एफिडेविट देख रहे थे तो उसमें भी एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, एक मर्डर केस का भी ये मेंशन किया गया है। मैडम मैं यही कह रहा हूँ, आज हमारी फाइल हुई है, फाइल में आपको देखेंगे कि आपको हमारे ऊपर सुशील सिंह के ऊपर कितनी केस है। पहला विषय, हमारे ऊपर आज के डेट में कोई केस नहीं है। एक केस है राजनीतिक केस है, धरना प्रदर्शन का केस है, सड़क के जाम के लिए 2017 में हमने जो फाइल किया था मैडम, उस केस जिस केस का आप जिक्र कर रही हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, किसी अपराधी का मर्डर हुआ था, पुलिस ने मुकदमा लिखवाया, बाद में उन अपराधियों ने, मुख्तार अंसारी ने मेरे खिलाफ कोर्ट से मुकदमा करवाया और सरकार ने मेरे खिलाफ चार्जशीट लगा दी और उस केस में कोई दम नहीं था, केस खत्म हो गई। लेकिन अब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो कोई भी लगाता रहेगा। The numbers suggest that BJP has a higher percentage of MLAs with serious criminal charges in the 2017 assembly. 27% of the BJP MLAs have serious criminal charges, while only 24% of the Samajwadi Party MLAs have serious criminal charges. We asked Sushil Singh's supporters about the supposed doublespeak by the BJP. तो ये जो सरकार कहती है भाजपा में इनके यहाँ कोई अपराधी ये नहीं होते, लेकिन आपके खुद के जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर भी केस है, उनके चाचा के ऊपर भी केस है, वो आपको आपत्तिजनक नहीं लगता? क्यों नहीं लगता है? क्या करिएगा? हाँ। हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, आपत्ति होगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? लेकिन आपका कौन ऐसा विधायक नेता जिस पर केस नहीं, हमको ये बताइए पहले आप। अच्छा, कौन ऐसा नेता है? अच्छा, केस नहीं हो। अच्छा, आप भाई इतना आपको बता दें बस। तो सब पे है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हर नेता बदमाश होता है, नेता बनता है। चाचा जी की वजह से इनके पर भी फर्जी केस है। अच्छा, लेकिन चाचा जी के ऊपर तो केस है, वो भी तो वो आपत्तिजनक नहीं लगती आपको? नहीं, आपत्तिजनक नहीं लगती है, इसलिए कि कोई किसी के, अगर हमारे बाप को कोई मारेगा तो हम भी उससे कोशिश करेंगे कि हम भी उसके परिवार को मारें। इनके चाचा जी के पिता। तो आपको लगता है ये ठीक था जो उन्होंने? ठीक नहीं था, ये भी नहीं चल पाते ना, अगर ये नहीं उस लाइन में कूदते तो ये भी नहीं बच पाते इनके चाचा जी। अच्छा, ओके। वो लोग बहुत मजबूत थे, इन लोगों को भी नहीं छोड़ते। अच्छा, लेकिन वो अगर दूसरे साइड भी दूसरे तरफ से भी वही कहेंगे हमारे खिलाफ लोग थे या कुछ थे। पहल उधर से हुई थी, इनके पिताजी की हत्या हुई थी गांव में। आपके यहाँ के प्रत्याशी जो यहाँ के विधायक भी हैं सुशील सिंह जी, इनके चाचा तो जेल में है, माफिया कहलाते हैं। ठीक है। और इनके ऊपर भी 302 का 307 का केसेस लगे हैं, मुकदमे हैं, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं लगता? ऐसा है कि इसमें जहाँ तक हमारी जानकारी है, उन्होंने मर्डर किया नहीं है, 302 किया नहीं है, उन्होंने अपने बाप का बदला लिया है। तो वो मर्डर नहीं हुआ? मर्डर तो है, लेकिन बदले भावना से है ना, किसी माफिया गर्दी से, गुंडा गर्दी से नहीं है। वो तो पर्सनल मामला है ना। अब हम लोग योगी जी को देख रहे हैं। अच्छा, योगी जी को देख रहे हैं, उनको योगी जी के ऊपर खुद भी केसेस थे जब तो क्या हुआ? केसेस है तो है, हमको पसंद है तो है। चलिए, केसेस हैं तो हैं, says the supporters of the BJP. All right, joining me tonight on Reality Check, we have with us Shant Prakash Jatav. He's the senior BJP leader. We have with us Seema Kushwaha of the BSP, Bahujan Samaj Party, and we have with us Vikram Singh, senior former DGP Uttar Pradesh. Thank you all so much for joining us. Shant Prakash Jatav जी, ये बताइए कि जैसे अभी हमने दिखाया कि जो भाजपा कहती है कि गुंडा राज आप लोगों ने खत्म कर दिया एसपी का, आपके सरकार के तहत ही सरकारी आंकड़े बताते हैं कि चाहे राइट्स हो, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन हो, ये सब बढ़ी हैं। और नंबर 2, आपने खुद
माफिया से जुड़े हुए जो नेता हैं उन्हीं के रिश्तेदारों को आपने भी टिकट दिए हैं। देखिए, अभी आपने जो पूरा डाटा दिया उसमें हम देख रहे हैं कि 2017 के बाद में डिक्लाइन की ओर चला है। तमाम जो है 2020 में हम काफी जो गुंडा राज जो था हम उसके ऊपर कंट्रोल कर पाए। 37,000 से ज्यादा मेरे पास भी कुछ आंकड़े हैं। गैंगस्टर्स को हम अरेस्ट कर चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में 523 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। 11,000 लोग जिनके ऊपर इनामी बदमाश थे उनको अरेस्ट किया गया है। और महिलाओं के उत्पीड़न के केस में और तमाम जो डकैती होती थी उसके केस में सब में डिक्लाइन हुआ है। और मोटे तौर पर अगर हम इसको सरल भाषा में समझें, नहीं, गाड़ी चोरी होती थी। एक सेकंड श्रीनिवास जी, एक सेकंड सुन लो। अगर आप कह रहे हैं आप ये गलत नहीं, बट आप गलत नहीं, बट आप जो फैक्चुअली गलत चीज कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा था क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एक्चुअली डिक्लाइन हो रहा है। आपके सामने जो आप फिगर दिखा रहे हैं डिक्लाइन बड़ी है। आपके नहीं, डिक्लाइन नहीं हो रहा है। यूपी में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आपके सरकार आने के बाद 36% बढ़ा है। 2018 में 60,000 के आसपास केसेस हैं, 2019 में 60,000 के आसपास केसेस हैं, 2020 में 50,000 के आसपास केसेस हैं, जो कम हुआ ना, सरकार के टाइम से कम हुआ। मैं वही बता रहा हूँ कि नहीं, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, नहीं, ज्यादा है, ज्यादा है, नहीं, ज्यादा है, मेरे से गलत निकल गया, ज्यादा है। नहीं, 2014 में 38,000 थे, 2015 में 35,000 थे, 2016 में 50,000 थे, उसके बाद 56,000, 60,000 और 60,000 हुए हैं। तो आपके आने के बाद केसेस बढ़े हैं। श्रीनिवास जी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। श्रीनिवास जी, वो दौर ऐसा था जिसमें कोई महिला अपना मुकदमा भी दर्ज करने, उसका मुकदमा तक दर्ज नहीं होता था, पुलिस वालों को पीटा जाता था। 1044 मामले ऐसे हैं जिसमें पुलिस को पीटा है समाजवादी गुंडों ने। आप ये देखें कि मेरठ, दिल्ली से गाड़ी चोरी होती थी और मेरठ जाके अच्छा ये बताइए, एक मोदी योगी सरकार नहीं, अब मुझे ये बताइए, दूसरा जो योगी जी का दावा था, कोई भी किसी तरीके की बदमाशी नहीं चलेगी। ये बताइए, एक सेकंड, ये बताइए कि आपने कहा, एक सेकंड शांत प्रकाश जी, मैं ऑडियो आपका डाउन नहीं कर रहा। आपने कहा था कि योगी जी कहते हैं कि कोई भी दंगे नहीं हुए हमारे आने के बाद। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आपके आने के बाद 30,000 दंगे हुए हैं यूपी में। आप मुझे एक दंगा तो याद दिलाए ना साहब। 30,000 ये आंकड़े जो कहां से आए मुझे मालूम नहीं। मुझे एक दंगा बताएं कि शांत प्रकाश उस जगह पे दंगा हुआ। कोई दंगा नहीं हुआ। आपके मुजफ्फरनगर का दंगा सबको याद है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये मुजफ्फरनगर का दंगा, मगर हमें तो एक दंगा आप याद नहीं दिला सकते शांत प्रकाश जी। जी, आप सरकारी आंकड़ों को, अब मैं, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, अगर आप देखिए सरकारी एक आंकड़ा तो बताना होगा ना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो आपको सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। मैं तो आपसे केवल एक दंगा पूछ रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में एक दंगा बताएं कि वो दंगा जो है वो दंगा हुआ और वो योगी सरकार में हुआ। आप मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ आप उसको किसी सूरत में नहीं भुला सकते। एक दंगा मुझे याद दिलाएं। मैं कह रहा हूँ कि सरकारी आंकड़े जो सरकारी आंकड़े स्थितियां पैदा होने जा रही हैं, किस आधार पे हैं, ये वही आंकड़े हैं जो हर साल एनसीआर भी निकालती है। चलिए, देखिए दंगा, अच्छा चलिए, सीमा कुशवाहा, मैं बताऊं, सीमा कुशवाहा जो एक आपस में जो लोगों में दो पक्षों में झगड़ा होता है, मेरे को आगे बढ़ने दीजिए, बाकी नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा चलिए, सीमा कुशवाहा, let's hear from you, because the BJP, the data may show that it is not as if UP has become crime or riot free, but when the BJP says that at least we managed to go after the big gundas and we managed to lock up or even controversially in some cases eliminate some of these gundas, would you not say that there has been a change? सीमा कुशवाहा सर, बहन जी की सरकार 1995 में जब बीएसपी पार्टी, बहन जी हमारी मुख्यमंत्री बनती हैं, सुश्री बहन जी मायावती जी, 1,44,000 गुंडा एक्ट लगा करके जो लोग थे, क्रिमिनल्स थे, उनको जेल में डालते हैं। अभी आंकड़े दे रहे हैं, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो आंकड़े दे रहे हैं करीब 37,000, जिसको मैं कहूंगी कि ये ऑथेंटिक भी नहीं है। अगर बहन जी का कार्यकाल देखें, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। आज मैं एक ऐसे नेशनल चैनल पे बैठी हुई हूँ जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में हम कह सकते हैं कि डेटा वेट डिस्कशन हो रहा है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपकी।
अगर हम पूरा 2007 से 12 का कार्यकाल देखें, लॉ एंड ऑर्डर बहन जी के शासनकाल में बहुत स्ट्रांग था। अगर विमेन के अगेंस्ट क्राइम की बात करें तो वो बहुत कम था। अभी रिसेंटली जो 2017 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, एक तो एनसीआरबी का डाटा, दूसरा सर एक और बात है कि जो ग्राउंड पर रियलिटी है जिसमें केस भी रजिस्टर्ड नहीं हो रहे। हम सभी ने देखा कि हाथरस में एक बिटिया के साथ गैंगरेप होता है, मर्डर होता है, बट इनकी पुलिस की नेग्लिजेंसी से पहले ये शुरुआत में उसमें एफआईआर प्रॉपर लॉन्च नहीं करते हैं। जब परिवार जो है प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है तो इनकी पुलिस उसमें पूरी तरीके से लिपापोती करने की कोशिश करती है, और जब वो लोग अपने हक अधिकार की मांग करते हैं तो रात में केरोसिन डाल करके जला देते। तो एक तो गुंडा राज तो इन्होंने नहीं खत्म किया, बट इनके पुलिस का जो बिहेवियर है, पूरा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें, चाहे वो मनीष गुप्ता हत्याकांड की बात करें, विवेक तिवारी हत्याकांड की बात करें, ये मनीषा वाल्मीकि हाथरस की बिटिया उसकी बात करें, और लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कई ऐसे घटनाएं हैं, बट ये बताइए जी। ओके विक्रम सिंह जी ओके ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। विक्रम सिंह जी भी है हमारे साथ, सीनियर फॉर्मर डीजीपी। विक्रम सिंह जी, व्हेन वन सीज this situation, because you studied UP, you've known the politics, that at the end of the day all parties come saying we will clean it up, but if you look at the candidates, like our report showed, at the end of the day you will find all parties across the board will end up fielding candidates who will have some kind of criminal mafia link, direct or indirect. Is this one of the reasons why you will continue to see this kind of worsening of the criminal landscape in UP? Mr. Jain, this is a national shame, and I think there should be a course correction. All the parties have a compulsion of backing up candidates with the wrong kind of criminal antecedents. And when you go to that, there are fancy and unacceptable pleas and alibis given that these are technical cases. I would like to understand what is a technical case. These are politically oriented cases. These cases are because of old enmity. There are bound to be cases, but the fact of the matter is the law does not distinguish between a political case, a technical case, and a case arising out of enmity. There are bound to be cases. The fact of the matter is there are three categories of cases. Either one is accused in the FIR, one is a charge-sheeted accused, or one is a convicted accused. Ideally speaking, Mr. Jain, I always draw the comparison in case of an IAS and IPS officer. If he stays in a lockup for 24 hours, he loses his job and is disqualified for all government jobs and services for all times to come. I wish this could be done. If you're holding this norm for a chaprasi, then hold this norm for a lawmaker also. Because if we have this stringent norm for a chaprasi and a peon, this should be for the political leaders also. Right. No, fair enough. शांत प्रकाश जाटव जी, ये बताइए कि जैसे यही अभी जो मैं विक्रम सिंह जी से पूछ रहा था, सबसे पहले आप जो बार बार राइट्स का कह रहे थे कि एक राइट का बता दीजिए, आप खुद गूगल करिए। कासगंज में 2018 में दंगे हुए थे, काफ़ी बुरी तरह दंगे हुए थे। तो एक उदाहरण हुआ, वैसे ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने टिकट दिया है, जो ब्रजेश सिंह जी के भतीजे हैं, सुशील सिंह, ब्रजेश सिंह जाने माने माफिया कहलाते हैं इस इलाके के, चंदौली के, वो जेल में हैं, मर्डर चार्जेस, आपने उनके भतीजे को टिकट दिया। उस तरफ सपा ने मुख्तार अंसारी के भतीजे और बेटे को टिकट दिया है। तो क्या फ़र्क है? अगर आप कहते हैं वो भी माफिया राज चला रहे हैं, आप भी माफिया राज चला रहे हैं? देखिए, जब तक किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल केस जो है वो साबित नहीं हो जाता, अव्वल तो वो दोषी करार नहीं दिया जा सकता, तब तक वो कोर्ट ट्रायल पर होता है। और दूसरा, दोनों के अपराध में भी हमें तो मुख्तार अंसारी भी कहते हैं कि वो ट्रायल पे हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना कि दोनों के अपराध वो किस कैटेगरी के हैं, उनका भी ट्रायल चल रहा है। उनके कारण से पूरा माफिया किस तरीके से काम कर रहा है। एक पॉलिटिकल आप केस जिसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, पॉलिटिकली प्रेशर बनता है, कोई गलत तरीके से ब्रजेश सिंह जी के खिलाफ भी मर्डर चार्जेस हैं, वो अलग चीज है। और उनका कन्विक्शन नहीं, चाहे हुआ या नहीं हो, वो उनके खिलाफ भी मर्डर चार्जेस हैं। जब तक साबित नहीं होता ना, तब तक तो उसको उनके खिलाफ भी मर्डर चार्जेस हैं, इनके खिलाफ भी मर्डर चार्जेस हैं। हाँ, प्राइमा फेसी जब हम देखते हैं कि इनके पास जो ये तो एक नेचर वाइज, इनका तो नेचर बना हुआ है लोगों को बदमाशी कराना और
उगाही कराना, इस तरीके के तमाम केसेस हैं, उनके ऊपर हैं कितने नहीं, केसेस, अब ये भी आप तो उसको देखें, justify 100 कर से रहे हैं, ज्यादा लेकिन केसेस एक हैं तरह से मुख्तार देखा जाए अंसारी के नहीं, but ऊपर, जहाँ तक- और ब्रजेश जहाँ- जी के ऊपर जो है वो, अब हाँ, भाई, वो दोनों तो के ऊपर इनके- केसेस देखे उनके ना ऊपर भी कितने कोई हैं। कम केसेस। एनीवे, और- चलिए छोड़िए, आप कह रहे हैं कि अच्छा, आप कह रहे हैं कि इन पे ज्यादा है, उन पे कम है, बट एट द एंड ऑफ द डे, वी आर आउट ऑफ टाइम, एट द एंड ऑफ द डे it is hard for the BJP to say that they have managed to clean up the track record here in UP, when, as we can see, their own candidates have the shadow of mafia Raj on them, leave alone what the data says about crime in Uttar Pradesh. We'll have to leave it there. Thank you all so much for joining us. बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े. That's all the time we have on Reality Check. Good night.